So now we have seen the properties of transpose. Now let's move on to the exercise that is dependent on these properties. Okay, so exercise 4.7. Let us do question number 6. ठीक है, सिर्फ मेन वाला एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूं मैं. ठीक है, नाउ देयर आर 3 मैट्रिसेस गिवन A B C. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. चलो सेकंड पार्ट में करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप कर लेना. सेकंड पार्ट आई एम डूइंग. बट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? A माइनस C द होल ट्रांसपोज is equal to A transpose minus C transpose. Question 6th का second part I am doing, first part you will do it. चलो, let's write down the solution for this problem. Okay, now we have to show that it is LHS equal to RHS. अब ये property है, transpose का ये property है, तो property है तो obviously prove होना ही चाहिए. तो let us first solve for LHS. ठीक है, तो लिखो consider. Now let us first solve for A minus C. पहले हम A minus C फाइंड कर लेते हैं. तो जस्ट राइट डाउन मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A फर्स्ट कॉलम में 2, 5, -6, -3, -4 and 1. This is matrix A minus matrix C. 1, -1, -2 in the first column, 2, 4, 3 in the second column. Okay, please write down first step. Okay, now why we are doing so students? Because first we want A minus C. पहले A minus C find करना है, फिर उसका ट्रांसपोज है. तो चलो, let us first find out A minus C is equal to. Now you know what will happen? This minus sign will go inside, और अंदर जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो आई एम डूइंग दैट डायरेक्टली राइट नाउ. तो व्हाट विल दिस हैपन? ये माइनस साइन अंदर गया तो ये प्लस हो गया. माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस. देखो सभी एंट्रीज का साइन चेंज हो गया और वो माइनस साइन अंदर चला गया. नाउ लेट्स ऐड देम. तो देयरफॉर राइट डाउन A माइनस C. ठीक है, 2 प्लस ऑफ -1 तो ये एंट्री आएगा 1, -1 -2 -3 -2 तो ये एंट्री आएगा -5. This entry will be 6. This entry will be -8. This entry will be -4 and this entry will be -2. This is A minus C. And we have already learned addition and subtraction. But लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए अपने को? ट्रांसपोज चाहिए. A माइनस C का ट्रांसपोज. तो लिखो देयरफॉर A माइनस C का ट्रांसपोज. करेक्ट, ट्रांसपोज का डेफिनेशन इंटरचेंज रो टू द कॉलम और कॉलम टू द रो. तो हम क्या करेंगे? लेट्स चेंज कॉलम टू द रो. फर्स्ट कॉलम becomes the first row. First column becomes the first row and second column becomes the second row. So -5, -8 and -2. Close the matrix का symbol. तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया. LHS is over. Let's number this as, if you want you just number this as 1. Now let us solve for the right hand side. Left hand side ka working is over. Now let us solve for right hand. Now let's consider the right hand side. So what is right hand side? It is A transpose minus C transpose. Now let's not waste time by writing down the question. Question आप देख लो notebook में, textbook में आप देख लो question. A transpose, तो जो मैट्रिक्स A दिया है उसका ट्रांसपोज लिखना है हमें. ठीक है, आई होप दिस विल बी अकोमोडेटेड इन दिस मच स्पेस. तो A का ट्रांसपोज,
तो 2 5 minus 6, 2 5 minus 6, first row becomes the first column. Sorry, first column becomes the first row and the second column becomes the second row. तो ये हो गया -3 -4 and 1. ये A ट्रांसपोज है माइनस C ट्रांसपोज. ठीक है. Now I am running short of space. I may run short of space. I try to accommodate over here. Okay, इसका ट्रांसपोज. बट प्लीज रिमेंबर ये इसका ट्रांसपोज नहीं आएगा. दिस इज नॉट सी. ये साइन चेंज हो गया था इसका, तो मैं सी ट्रांसपोज लिख देता हूँ. इट इज 1 -1 and -2. First column becomes the first row and second column becomes the second row. ये दिस इज नॉट सी है, ये सी नहीं है, उसका साइन चेंज कर दिया था हमने. ठीक है. नाउ चलो subtract these two matrices and let's check whether they are equal or no. ये दोनों को subtract करते हैं हम. तो लिखो therefore A ट्रांसपोज माइनस C ट्रांसपोज, so that's equal to 2. अच्छा, अभी थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप चाहिए तो माइनस साइन अंदर लेके जाओ. 2 - 1 is 1. 5 माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो जाएगा. बी केयरफुल अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो. +1, तो 5 + 1 दिस इज 6. -6 and +2 is -4. First row of the matrix. -3 -2 -5. -4 -4 is -8 and 1 - 3 is -2. इसको आप दे दो एक्सप्रेशन 2. नाउ चेक आउट 1 and 2 दे आर सेम. हो गया प्रूफ. तो क्या प्रूफ किया हमने? दैट A minus C the whole transpose is equal to A transpose minus C transpose. That's it. Problem is over. Yes. Is it understood to everyone? Yes, sir. ठीक है. तो एकदम सिंपल है. ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पहले आप A minus C फाइंड करो. I'll explain. पहले आप A minus C फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाल लो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. दोनों चीज इक्वल होती है. दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज. अब ऑब्वियसली माइनस के लिए आ गया तो प्लस के लिए तो आपको आ ही जाएगा. तो द फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट है दैट आई एम नॉट डूइंग. माइनस आ गया तो सेम वे यू हैव टू डू फॉर प्लस आल्सो. तो क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जांपल नंबर 1 इज योर होमवर्क एग्जांपल. ठीक है. तो उसमें क्या प्रूव करना है आपको? In this you have to prove that A plus B the whole transpose is equal to A transpose plus B transpose करना है. अब मैट्रिक्स A B C तीन मैट्रिक्स उसने दिए हैं. जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें A C यूज हो गया, जो फोर्थ प्रॉब्लम है उसमें A B यूज होगा. ठीक है. तो दिस प्रोसीजर अच्छा समझा देता हूं मैं आपको. पहले A plus B फाइंड कर लेने का, फिर उसका ट्रांसपोज निकालने का. राइट हैंड साइड के लिए A ट्रांसपोज निकालने का, B ट्रांसपोज फाइंड करने का, और फिर दोनों को ऐड करने का, तो दोनों इक्वल आएंगे. सी ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. तो प्लीज रिमेंबर ये इक्वल आने ही चाहिए, कंपलसरी है. तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस एज होमवर्क सेक्शन. कर लोगे आप? यस. Yes, sir. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? विल यू बी एबल टू डू इट? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for your response. So let's move on to the next question now. Okay. Now let's move on to question number 9 of the exercise. ठीक है. अभी इसमें देखो क्या प्रूव करना है अपने को. We need to prove. अच्छा, we need to verify. We need to verify. What is to be verified? I'm writing down over here. A plus 2B plus 3C the whole transpose equals A transpose plus
twice of B transpose plus thrice of C transpose. Note down this. A plus 2B plus 3C the whole transpose is equal to A transpose plus twice of B transpose plus thrice of C transpose. ये वेरीफाई करना है इक्वल आएगा कि नहीं. This is to be verified. तो चलो let us first solve for LHS. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं. Okay, solution. Now matrix A, B and C is available. और anyways वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो लिखना ही पड़ेगा मैट्रिक्स. So right now I'm not writing it down. So let's consider this. देखो consider the matrix equation. What is the matrix equation? A plus 2B plus 3C. Let's consider this matrix equation. Now this is equal to matrix ABC is given. तो लिखो matrix A का first row है 101, second row is 312 plus twice of matrix B. Matrix B का first row है 21 minus 4 and this is 35 minus 2 is the second row of matrix B plus thrice of matrix C. Matrix C का first row है 0 to 3 and second row है -1, -1 and 0. Okay, please note down the first step carefully. When you are writing down the matrix entry, see to it that there is nothing wrong in this. नहीं तो तकलीफ हो जाएगी अपने को. एक बार क्रॉस चेक कर लेने का आगे बढ़ने से पहले. Okay, now we all know what is to be done next. ये 2 अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this will be further equal to this matrix 101, 312 remaining same. Now let's quickly multiply them. So ये 4, 2 minus 8 and this is 6, 10 minus 4 plus यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 6, 9 and this is -3 and 0. ये मैट्रिक्स हो गया. अब तीनों को हम एक साथ ऐड करेंगे. We add all the 3 matrices together at a stretch. तो उनके corresponding elements are to be added. This, this and this. So this is 4. Yes, बराबर है. Next. 5. देखो प्लीज बी केयरफुल. ठीक है, तो ध्यान रखो आप. ओके, ये एंट्री है 5. चलो नेक्स्ट 0 2 6. नेक्स्ट एंट्री आएगा 8. 1 -8 and 9. नेक्स्ट एंट्री आएगा 2. नेक्स्ट दिस ये तीनों को ऐड करना है. नेक्स्ट एंट्री आएगा 6. चलो फाइंड आउट दीज 2 एंट्रीज एंड टेल मी. 8 and -2. Okay. 8 and -2. Okay, good. चलो ठीक है, लेट्स चेक. 1 10 बराबर है, करेक्ट. 8 वेरी गुड. और ये है -2 बराबर है, करेक्ट. ये अपना हो गया A plus 2B plus 3C. अभी क्या करना अपने को लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसका पूरे का ट्रांसपोज निकालना है. इसका ट्रांसपोज तो आप लिखो therefore नाउ आई ट्राई टू डू इट हियर. अभी इसके बाद का स्टेप ना मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि वो पार्ट मैं यहाँ पे कर सकूँ. ओके, तो इसके बाद मैं ये स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ. therefore इसका ट्रांसपोज तो लिखो therefore A plus 2B plus 3C the whole transpose will be equal to इसका ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो becomes the first column. तो ये 5 8 2 and second row becomes the second column. ये हो गया LHS का वर्किंग. दिस इज डन. LHS इज ओवर. तो आई होप एवरीवन मस्ट हैव गॉट दिस LHS.
Yes, sir. for the right hand side. Okay. ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट, है ना, द सेकंड एक्सरसाइज और द फर्स्ट वन. ओके, नाउ लेट्स गो विद आरएचएस. एलएचएस हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया. इसके बाद इसका ट्रांसपोज यहाँ पे निकाला है. दिस इज, इफ यू वांट यू कैन नंबर दिस इज एक्सप्रेशन 1. नाउ लेट्स सॉल्व फॉर आरएचएस. आरएचएस क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज plus thrice of C transpose. So A transpose, this is A, इसका transpose 1 0 1 first column, 3 1 2 second column plus twice of B transpose, ये अपना मैट्रिक्स B है, इसका ट्रांसपोज 2 1 -4 3 5 and -2 plus thrice of C transpose, A times of C transpose. तो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 2 3 और ये आएगा -1 0. चलो अब आप ये मल्टीप्लाई करो और फिर इसको ऐड करो एंड चेक आर वी गेटिंग दिस. चेक आर वी गेटिंग दिस. ये 2 सबको जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 सबको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड करो एंड चेक द इक्वालिटी. आप करो वो वर्किंग. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. तो ए ट्रांसपोज प्लस ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस थ्राइस ऑफ सी ट्रांसपोज इक्वल टू. अच्छा, अभी इसमें वेरीफाई करना है इक्वल है कि नहीं है. तो वेरीफाई में जरूरी नहीं है कि वो इक्वल आने चाहिए, बट यू डू इट. Done, sir. डन. ओके, आर दे कमिंग इक्वल? Yes, sir. यस, करेक्ट. दे शुड कम इक्वल. ये भी प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड हो जाता है. हाँ, 2 है 3 है, 3 टर्म है प्रॉपर्टी, 2-3 टर्म के लिए भी एप्लीकेबल है. दे विल कम इक्वल. चलो मैं ओरली करके बता देता हूँ. ये 2 अंदर जाके सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 अंदर जाके, तो ये 1, ये 2 2 4 और ये इधर 0 है, तो 1 + 4, तो ये एंट्री आएगा 5. ये एंट्री 3 है, ठीक है. ये 3 2 6, तो 6 + 3 इज 9, ठीक है ना. तो ये दिस एंट्री इज, ठीक है, ये 9 हो गया और ये आएगा -3, तो +3 -3 का है, तो ये एंट्री आएगा 6. चेक, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो. ओके, नाउ सिमिलरली फाइंड आउट द सेकेंड रो एंड द थर्ड रो. तो ये 2 + 6, तो ये एंट्री आएगा 8. इधर ये 1 + 10, तो दैट्स 11 और ये -3, तो ये आएगा 8. सेकेंड रो 8 8 आ गया. अभी थर्ड रो, दिस इज 1 एंड -8 -7, -7 एंड +9, तो ये आ गया +2. ये आ गया 2 - 4, तो ये आ गया -2. -2 और वो इधर 0 है, तो दिस इज -2. तो चेक, you can number this as expression 2. Now see, expression 1 and expression 2 are equal. Expression 1 and expression 2 are equal. तो ये हो गया proof. Therefore आप लिखो, therefore write down this step. इसके बाद I don't have space. तो ये 1 and 2 के बाद आप लिखो therefore this whole thing is equal to this. Okay, please finish it off. Check, have you got the answer everyone? मिला इक्वल आपको ये, ठीक है ना. चलो